So I have just sent Alpana a request. Hi, Yeah, Yash. Can you hear yeah, me? hi, yeah. Hi, Finally. Alpana. Finally, after Yeah, like so finally. much This has try. been Yeah, a trek. Okay. sure. All right. So yeah, so guys, we are back with another live session of Speak Up Initiative, and I'm having an amazing person with me. She is Alpana, and she is the founder of Tivra. It is a, riding a gear, like it is a riding gear company which is dealing into helmets, and they are planning into entering into various products for bikers, so that they can create some amazing experience for the riders and they can streamline riding. So, Alpana, before we kickstart this theme, कि राइडिंग जो एज अ गेयर इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज और challenges है, it would be great if you can have a like if you can tell a brief introduction about yourself. Yeah. So, India has the largest number of motorcycles, two-wheelers in the Correct, world, of which motorcycles are the largest number. correct. Every month, there is a new bike being launched. At least two, three new bikes are being launched almost every month, new models. Correct. And 200 to 250 cc plus is the fastest growing segment. Correct. So while the bikes are getting faster and stronger and more powerful, what is happening is that the helmets are remaining pretty much the same. Helmet technology वही है, Correct. and riding culture is increasing. तो आप देखो कि 100% of track riders जो हैं, they all wear composite fiber helmet only. Okay. And there is a reason for this कि it really protects their heads. जो Correct. टेस्टिंग होती है, ISI की टेस्टिंग, that is testing is done at 27 kilometers per hour. Even the Okay. ECE testing is done at about 50 kilometers per hour. So Okay. most of these the pass mark is quite low. तो वो पास Okay. तो कर जाते हैं, उनको मिल जाता है, ISI भी मिल Correct. जाता है, ECE भी मिल जाता है. Correct. I think the problem is that when people go at higher speeds, what will really save them is composites. So Correct. we are doing only composite fiber helmets. That is Okay. the first opportunity we found. Okay. There is another one, which Mhm. is that you know cruisers rider, Mhm. वो रॉयल एनफील्ड का वर्ल्ड और हार्ली वर्ल्ड, इट इज Correct. वेरी नाइसली डिफाइंड, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं and all that. But the Correct. cruiser rider rides at 90 degrees. He rides upright like this, right? But the Correct. riders who are riding in between 35 to 65 degrees more aggressively, उनके लिए helmets optimize करना, Mhm. that is what we've done. So we've identified that rider, Correct. that consumer for ourselves with composite fibers. ग्रेट. सो मैं लाइक आपकी स्टोरी जब पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आपका यही कहना था कि बाइकिंग सेगमेंट बहुत इनोवेट हुआ है, बट जो राइडिंग गेयर सेगमेंट है वो इतना इनोवेट नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ यूजर सेंट्रिक डिजाइन प्लस यूजर सेंट्रिक प्रोडक्ट, एंड यू आर स्ट्रीमलाइनिंग इट विथ कॉम्पोजिट फाइबर. Correct. मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो 50 से 60 हजार की बाइक लेके चल रहा है, लाइक अभी तो खैर स्प्लेंडर भी 80 हजार की हो गई है, क्या उसको भी इतना ही कॉशन से अपनी सेफ्टी को लेना चाहिए? क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं कि 500 हजार का हेलमेट ले लिया क्योंकि मेरी बाइक 60-70 हजार की है, अ, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन पे जाना या स्टैंडर्ड वर्जन पे जाना उसी को चाहिए जिसके पास 1.5 लाख की बाइक है या 2 लाख की बाइक है, उस रेंज से स्टार्ट है. सो हाउ टू केटर दैट मेंटालिटी और बेसिकली हाउ टू प्रोवाइड अ रीजन टू देम? हर यश, ये जो मेंटालिटी है ना, वो बाइक के प्राइस से रिलेटेड नहीं है. बहुत सारे सुपर अच्छा. बाइकर्स भी होते हैं, दे गो करेक्ट. विदाउट हेलमेट और दे हैव अ वेरी चीप हेलमेट. करेक्ट. आई थिंक पीपल हु आर सीरियस अबाउट राइडिंग और जो एक दो बार गिर चुके हैं, क्योंकि ये पहला हेलमेट किसी का नहीं है. जब करेक्ट. शुरुआत में राइडिंग होती है तो कोई सोचता भी नहीं है कि ये सब चाहिए, इस टाइप का प्रोटेक्शन. आई थिंक जब कोई एक दो बार गिरता है, देर आर सम क्लोज करेक्ट. ब्रशेस, then इसकी importance is there. ओके. So I think we are talking to the more evolved riders, थोड़ा experience हो उनका. करेक्ट. That is the kind of customer who will buy ओके. Tiivra. श्योर. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कॉम्पोजिट फाइबर में जब आप हेलमेट बनाते हैं तो लाइक उसका चैलेंज क्या है इन कंपेयर टू जो नॉर्मल फाइबर वाले हेलमेट होते हैं?
So any तो challenges which you would like to, yeah. ये हमको 2.5 साल लगाए यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा. बहुत चैलेंजिंग है यश। Okay. ये जो इंजेक्शन मोल्डिंग होता है ना, वो दैट 99% ऑफ वर्ल्ड्स हेलमेट्स आर मेड फ्रॉम इंजेक्शन मोल्डिंग, क्योंकि बहुत सिंपल Okay. होता है। एक बार आप अच्छा. मोल्ड बना दो, उसमें आप Correct. प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स डालते जाओ और वो एक जैसा ही बनता जाएगा। एंड देन यू हैव टू पुट प्लास्टिक पार्ट्स इन इट, असेंबली, इट्स वेरी क्विक, वेरी इजी। Sure. The difficulty is when composite fibers are basically different fibers, और ये जो fibers different axis पे होते हैं, मल्टी एक्सियल फाइबर्स होते हैं, तो जो उनकी एक्सेस अलग अलग टाइप की होती है, उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है। दैट इज Okay. हाउ यू कैन हैव वेरी थिन फाइबर्स। उसी में वो साइंस भी है और आर्ट भी है। तो व्हेन यू हाउ यू फ्यूज दीज फाइबर्स टुगेदर, उसमें स्ट्रेंथ आती है। दिस इज अ Okay. हैंड जॉब। अब ये हैंड जॉब में टू मेक समथिंग विच इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज इज़ अ चैलेंज, लेकिन Okay. ये हम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो हमारा शेल बना रहा है, ही इज़ ऑल्सो अ Correct. मैन्युफैक्चरर जो इंडियन नेवी के लिए टॉर्पीडोज कर रहे हैं, या Mhm. सबमरीन के हल्स बना रहे हैं, या यूएवी बना रहे हैं फॉर डिप्लॉयमेंट एक्चुअली। तो ही इज़ द सेम काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर, ही हैज़ ट्रिमेंडस प्रिसिशन। लेकिन जो इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रिसिशन है वो नहीं है यहाँ पे। तो यू अच्छा. नीड, प्लस इसमें टाइम लगता है। तो अच्छा. जो जो वो मशीन चला दो आप और एक साथ 1 लाख पीसेस हो जाएंगे आपके 1 महीने में। दिस Correct. टेक्स लॉन्गर, दिस रिक्वायर्स मोर टाइम, मोर क्योरिंग टाइम, देयर इज अ लॉट मोर केयर दैट गोज इनटू मैन्युफैक्चरिंग। तो Correct. यही दैट इज वेयर द डिफिकल्टी इज। Sure. Sure. So you have said that कि इसको इंजेक्ट करके सिर्फ नहीं बनाया जाता, कि इसमें आप 1 महीने के अंदर 1 लाख पीस, या एक बार के अंदर आपने 1 लाख यूनिट्स बना लिए जी। आपने। हाँ. मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाइक मेरे को ये क्यूरियोसिटी थी कि आपका, लाइक यू आर सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन 5 कंपनीज। अभी ये जो आपका वेंचर है, आपने सडनली ऐसा क्यों डिसाइड किया कि मुझे पर्टिकुलरली राइडिंग सेगमेंट के लिए करना है और मेंस के लिए करना है? बिकॉज दूसरे ब्रांड्स भी है। मैंने आपका स्टोरी पढ़ा था, उसमें मैंने यही देखा था कि यू वांट टू डू समथिंग फॉर दिस मस्कुलाइन पीपल, बिकॉज कोई ब्रांड ऐसा नहीं था जो इनसे डायरेक्ट कम्युनिटी के थ्रू भी कनेक्ट हो रहा था, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेंट्रिक हो रहे थे। सो इतना अनसर्टेनिटी में जाना, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन। So I mentored two companies which are women centric. एक तो था Nykaa.com, जो फाउंडर है वो मेरी क्लासमेट थी IIM अहमदाबाद से। और दूसरी कंपनी थी कैरेट लेन। अच्छा. एक ज़माने में आई यूज टू बी द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर तनिष्क। तो ओके. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ विमेंस ब्रांड्स। और कुछ 6 साल पहले हम पेप्सी के लिए कुछ काम कर रहे थे, एंड अच्छा. आई फाउंड कि लॉट ऑफ ब्रांड्स आर टॉकिंग टू यंग वुमेन, लेकिन यंग मैन के साथ रिलेशनशिप सचमुच में बना के कोई ब्रांड नहीं है विच इज टॉकिंग इन अ डीप मीनिंगफुल वे, डिफरेंट फ्रॉम योर ओके. फादर्स जनरेशन। तो ये कोई बात नहीं कर रहा है, एंड दैट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। तो एक तो वो अपॉर्चुनिटी हो गई कि टॉक टॉक टू यंग मैन। दूसरा, करेक्ट. द कंपनी वी यूज टू, लॉट ऑफ माई कॉलीग्स हु हैव कम हियर ऑल्सो, पहले हम साथ में ही काम करते थे। तो दैट वाज अ करेक्ट. डिज़ाइन कंपनी। तो हम ओके. देखते थे कि प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो नए नए बाइक्स आ रहे हैं, लेकिन हेलमेट में कुछ हुआ नहीं है। एंड इट सीम लाइक अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। जो 3 ब्रांड्स हैं, स्टड, स्टील बर्ड, वेगा, या इवन जो नए ब्रांड्स आए हैं, LS2, MT, दे आर ऑल गुड ब्रांड्स। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर, उनकी उनका दे डोंट कनेक्ट विद कस्टमर्स, देयर इज नो कम्युनिटी दे आर बिल्डिंग। दे ओके. जस्ट वो डीलर के पास रख देते हैं, सोचते हैं कि ये बिक जाएगा। करेक्ट. लेकिन आई थिंक जो एक्सप्लेनेशन देनी है, आई थिंक वन ऑफ द पर्सन ऑल्सो रोट अभी नीचे कि दिस करेक्ट. इज द एक्सप्लेनेशन वी शुड गिव पीपल। तो दैट इज द आइडिया कि ब्रांड तभी बनेगा ये करेक्ट. व्हेन वी आर एबल टू एक्सप्लेन कि ये प्रोडक्ट क्या है और इसका डिफरेंस क्या है। करेक्ट. So yeah, it's, उसको यस. इकिगाई बोलते हैं कि it's a combination of opportunity, uh, yeah, and what else you want to do, your intention and what the world needs all together. यस.
एंड लाइक मूविंग अहेड इन द कन्वर्सेशन, मैंने आपके स्टोरी में ये भी पढ़ा था कि आप टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि कोझिकोडे हो गया, ये बेल्ट्स में राइडर्स भी है, तो आप इनकी कम्युनिटी बना रहे हैं। सो मैं जानना चाहूंगा कि हाउ यू आर बिल्डिंग दैट कम्युनिटी एंड हाउ यू आर ड्राइविंग दैट कम्युनिटी, बिकॉज you have listed few names of some good players in this segment, but they are only प्रोडक्ट सेंट्रिक की भाई डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ रख दो एंड वो ऑटोमेटिक बिकेगा। आप एक कम्युनिटी, लाइक यू वांट टू एंगेज पीपल, यू वांट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन, यू वांट टू स्प्रेड the information about the essence of riding, the importance of having a right gear and an upgraded gear. So, how this community is being driven and formed? I think community जब यश होती है when you do things honestly, people, Correct, you relate with people. तो correct, हमारा, we don't think we are only a business. In fact, we have started something called Tiivra Community Fund, जिसमें हम कुछ राइडर्स जो who will join us from time to time, वो जितना राइड करते हैं पर राइड, पर किलोमीटर दे राइड, we are putting in mm, some money. The okay, idea is कि when there are accidents, so nobody should think we are offering assistance to any rider. correct, Immediately, no questions asked, up to 10,000 rupees. Hopefully, ये हमारा fund बढ़ता जाएगा, then we'll be able to assist even more. correct, But we have recruited Tiivra 100. एक हमारा contest था last year. mm, तो okay, कुछ 100, हमारे पास कुछ 5,000 applications आई थी, और उसमें से after talking to them, after um, interviewing them, we had 100 people, and every correct, year we will be getting Tiivra 100 people working with us. तो वो हमारी community हो गई. Plus we okay, are going from city to city, and okay, कुछ हमारे जो programs हैं, plus some riding experiences we are creating are very unique riding experiences. We correct, believe कि जो एक तरह की riding होती थी कि either people only went far, या mm, लद्दाख चले गए, लेह चले गए, या correct, they went fast कि ट्रैक पे हो. Lot of correct, bikes only have track events, or lot of bikes only have Himalayan Odyssey, correct, ऐसे कुछ होगा, correct, या फिर ओनली ऑफ रोडिंग होगा. सो वी आर सेइंग कि बाइकर्स टुडे वांट अ मल्टी टेरेन, मल्टी स्किल एक्सपीरियंस. तो mm, ये हम कर रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग इट फ्रॉम सिटी टू सिटी, एंड आवर प्लान इज कि ओवर द नेक्स्ट 16-18 months वी विल गो टू मे बी 25-30 cities. तो इनफैक्ट okay, अभी हमारा कैंपेन चल रहा है, हम लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप चाहें कि तीव्रा आपके सिटी में आए तो प्लीज टेल अस, एंड डिपेंडिंग ऑन द वोट्स वी विल डिसाइड विच सिटी टू गो टू. And so we want to connect at the grassroots. correct, I think correct, बेचना जो है ना, वो तो अपने आप बिक जाएगा. अगर हमको बेचना होता तो we would be listed in Amazon. हम अभी तो डिस्काउंट दे correct, देते, बहुत कुछ. correct, I think हमको कम्युनिटी बनानी है, रिलेशनशिप बनानी है. If people like our helmet, they will buy. We are not, correct. that's not our push. Correct. I think the last line was a cracker for this entire session कि अगर बेचना है तो हम Amazon पे लिस्ट हो जाएंगे, हम ओमनी चैनल का रूट भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, बट हमको यूजर सेंट्रिक हेलमेट्स बनाने हैं और उनको वैल्यू लगेगी तो वो बाय करेंगे. दिस इज समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू सी इन टूडेज businesses. जो भी, दिस इज आई थिंक वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग विच आई हैव हर्ड, बिकॉज आज के टाइम में सेल्स बहुत ज्यादा पुश होती है कि नंबर्स है तो सब कुछ है. सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस बिटवीन फाइबर एंड कॉम्पोजिट फाइबर, दोनों की सेफ्टी में क्या फर्क आता है, अगर एक नॉर्मल बाइकर को हमें एक्सप्लेन करना हो जिसके पास वो नॉलेज नहीं है इतना कि वो डीप में या फिर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में समझ पाएगा. सो हाउ वुड हाँ. यू एड्रेस टू दैट So, सेगमेंट? यश, एक्चुअली डिफरेंस या है प्लास्टिक और कंपोजिट फाइबर में. जो नॉर्मल हेलमेट्स ओके, बनते हैं ना, वो एबीएस के बनते हैं या पॉलीकार्बोनेट के ओके, बनते हैं. ओके, तो दैट इज अ प्लास्टिक मटेरियल. तो प्लास्टिक, अगर अगर आप ना हथौड़ा लोगे और ये हेलमेट को मारोगे, तो वो हथौड़ा एक छेद कर देगा, उसके अंदर घुस जाएगा. ठीक है. करेक्ट, जो कंपोजिट मटेरियल होता है उसमें अलग अलग फाइबर्स होते हैं, ग्लास के फाइबर्स होते हैं या कार्बन फाइबर्स होते हैं. तो ये जब इम्पैक्ट होती है तो ये इम्पैक्ट डिसिपेट हो जाता है सारे शेल के ऊपर. ओके, जैसे विंडशील्ड आप देखते हैं कि विंडशील्ड, अगर
वो पूरा क्रैक होता है, दैट्स व्हाई इट डजंट करेक्ट फॉल, तो अदरवाइज ग्लास कैन फॉल ऑन पीपल एंड दे कैन डाई। तो ये जो डिसिपेट होता है इम्पैक्ट, उसकी वजह से इट इज़ अ मच बेटर मटेरियल एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ। तो हमारा जो एक्चुअली हम चाह रहे थे कि ISI से देर इज DOT ऑल्सो, तो DOT की भी वी ऑल्सो हैव DOT सर्टिफिकेशन, लेकिन वी वांट टू ऑल्सो इन्फॉर्म पीपल कि हमारा चूंकि है DOT, वी आर स्टिल सेइंग इट इज़ नॉट द बेस्ट, बिकॉज DOT सर्टिफिकेशन ऐसे होता है कि आई कैन गो टू द DOT वेबसाइट और आई कैन पुट डाउन अवर लैब टेस्ट रिजल्ट्स। मैंने कुछ भी एज अ मैन्युफैक्चरर मुझे कुछ भी डालना है मैं डाल सकती हूँ, बेसिस व्हाट वी आर सेल्फ डिक्लेयरिंग दे विल गिव अस द रिपोर्ट। तो इसमें हमारा तो लैब टेस्ट हुआ है, बट यू नो हम हमारे जो पहले मैन्युफैक्चरर थे जिनके साथ हम अब नहीं काम कर रहे हैं, उनका तो कहना था कि ये आपको लैब टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जाके कुछ भी डाल दो उधर, आपको मिल जाएगा DOT। सो दैट्स नॉट अ वेरी सेफ सर्टिफिकेशन। टू अवर माइंड द बेस्ट सर्टिफिकेशन इज ECE, लेकिन ECE में एक पुराना उनका था 2205, वो 2205 की लाइन में हम खड़े थे और जून 3 को वो जून या जुलाई 3 द गेट शट बिकॉज दे वर नॉट अलाउिंग न्यू पीपल, तो इतनी लंबी क्यू थी दैट वी लॉस्ट इट बाय जस्ट अ फ्यू डेज। अब 2206 सर्टिफिकेशन है, इट इज़ अ मोर डिफिकल्ट सर्टिफिकेशन, इट इज़ एट अ हायर हाइट, उसमें एक एनविल होता है वो टेढ़ा होके स्पिन करके आता है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्पैक्ट टेस्ट। We are passing that test, not just passing it but passing it by a mile, really doing much better। तो वो भी आ जाएगा हमारा, उसमें प्रोसेस लगता है क्योंकि वो सारे लैब्स ओवरसीज हैं, तो वी आर इन दैट प्रोसेस। I think at the end of the day we have to have a better product, and the idea is that if we have a better product, so why can't we also be an Indian brand that can be a global brand? अगर हमारा प्रोडक्ट ECE है और DOT है तो हम we should be able to sell globally also. So that's the dream. करेक्ट एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी सारे जो ब्रांड्स है वो ISI सर्टिफाइड है, राइट? ये DOT एंड ECE सर्टिफाइड, आप ही उस तरफ जाने का सोच रहे हैं? एंड नहीं, कुछ है जो DOT होंगे, और ECE 2205 भी शायद कुछ है, आई थिंक LS2 MT XOR, लेकिन ये सारे प्लास्टिक्स हैं, बट दे हैव क्रॉस्ड। सो हमारा जो है ना, देयर इज एन इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है, उसमें एक G वैल्यू होती है, ये G वैल्यू जितनी कम हो उतना अच्छा। तो ISI में रिक्वायरमेंट होती है 400 Gs, ठीक है, और ECE 2205 में होती थी 275 Gs, अब O6 में 250 Gs की रिक्वायरमेंट है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स, इम्पैक्ट पॉइंट्स पे इसका स्कोर क्या आता है। तो हमारा जो स्कोर है जो 250 पे क्लियर होता है, हमारा 110, एक्चुअली एक जगह पे 90 भी है, सो 90 से लेके करीब 210 तक ये रेंज है, विच मोस्ट ऑफ देम आर लेस देन 140। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपको मिला है ECE की नहीं, लेकिन how well have you performed, that is the most important thing, how good are you really as a helmet, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन तो मिल जाएगा, कोई भी क्लियर कर लेता है उसको मिल जाता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। करेक्ट सो you are focusing on not just certification, you are not just focusing on the material, you are like material is the USP, but apart from that a connect with customer is your main reason and main point of creating this business। मैं जब आपकी वेबसाइट पे भी गया तो मैंने देखा कि आपने प्रोडक्ट के बारे में ही सिर्फ बात नहीं की, आपने यूजर डिजाइन के बारे में बात की, लाइक यूजर सेंट्रिक डिजाइन। एंड पर्सनली मैंने वेबसाइट देखी और जब मैंने प्रोडक्ट्स देखे, दे आर डिजाइन वाइज वो काफी अलग है और काफी इनोवेटिव लग रहे, लाइक कि ऐसे इनोवेटिव हेलमेट्स मैंने देखे नहीं होंगे, चाहे वो जो भी कंपनीज के आपने नाम भी लिए जो इस सेगमेंट में है और लाइक इस सेगमेंट को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। सो क्या मतलब आपका गोल ये है कि लाइक इसमें मेरा एक और सब क्वेश्चन होगा कि आपको सिर्फ हेलमेट टारगेट करना है
क्या ऐसा भी है कि यू विल टारगेट ग्लव्स, यू विल टारगेट जैकेट्स इन द कमिंग डेज विद सम मॉडिफिकेशंस, जैसे आपने हेलमेट में किया? यू राइट यश, एक्चुअली तीव्र जो नाम ही है उसमें कि बहुत करेक्ट, ज़्यादा इंटेंसिटी है और इंटेंस भी इंटेंस, होता है। तो आई डोंट थिंक विल डू एनीथिंग ऑर्डिनरी। वो या ऑर्डिनरी तो आई थिंक वो करना था तो करते ही क्यों। करेक्ट, लेकिन सो वॉट एवर वी विल डू, अभी कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के, ग्लव्स हैं जिसमें देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस। या मेन थिंग इज कि ग्लव्स पहन के ना वो टैक्टाइल एबिलिटी चली जाती है आपको फिंगर से यूज करने के लिए, और उसको एजिलिटी करेक्ट, कितना बेंड कर सकते हैं। सो बेंड कर दोज सकते थिंग्स वी आर सॉल्विंग फॉर। कुछ जर्सीज में कुछ नया कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू हैं। डू दैट एंड सी। अभी जो जर्सीज मिल रही हैं दे आर ओनली डिजाइन विच इज मैचिंग अवर करेक्ट, ब्रांड, लेकिन उसमें करेक्ट, फैब्रिक भी वी आर ट्राइंग न्यू काइंड्स ऑफ फैब्रिक। आई थिंक हम लिमिटेड नहीं है सिर्फ राइडिंग गियर तक। इन फ्यूचर वी विल ऑल्सो लुक एट मेनी अदर थिंग्स, मे बी वी विल बी अ राइडिंग सेकेंड हैंड बाइक प्लेटफॉर्म, मे बी वी कुड ऑल्सो ओके, बी, आई थिंक इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप विथ रिलेशन, अवर कम्युनिटी। तो करेक्ट, उसमें प्रोडक्ट फिर इज इररेलेवेंट, इट्स मोर द रिलेशनशिप। करेक्ट, करेक्ट। यू हैव टोल्ड दैट कि आप कम्युनिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें करना चाहते हैं, एंड आप अगर कोई कैटेगरी में आओगे सो यू विल डू समथिंग यूनिक विच इज नॉट बीन डन और विच इज नॉट बीन एडॉप्टेड। सो current state में, like present situation में, what is the response of the audience, like considering you have told that कि like जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि क्या ऐसा है कि अब वो बाइक की प्राइस देख के एक राइडर अपनी सेफ्टी देखता है, जो कि आपने बोला कि नहीं, जिसको राइडिंग करना होता है और जिसको, जो गिरा हुआ है, दो बार गिरा है, उसने फील किया कि नहीं, अगर आज मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी का हेलमेट पहना होता तो मैं आगे जाके अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं अपनी इंजरीज को कंटेन कर सकता हूँ। सो like what's your message to all those riders and all those budding people who are watching this session and who are going to watch in a riding domain or in any domain which you are going to enter, कि अपनी सेफ्टी को आप उस उसमें आप कहीं ना कहीं उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते या उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं ला सकते? करेक्ट। तो सी, एक तरह की सेफ्टी होती है जो डर की वजह से होता है कि आप करेक्ट, अ, ताला लगा लो घर पे कि कोई चोर नहीं आ जाए, राइट। द करेक्ट, अदर वे ऑफ लुकिंग एट अ लॉक इज कि हम ये ताला लगा के हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, इट करेक्ट, इनेबल्स rather इट than एनेबल, restricts। तो करेक्ट, ये हमारा आइडिया है कि वी शुड इनेबल। और करेक्ट, यू नो यश, ये कैटेगरी में ना अब तक जो बाइकिंग की हायरार्की होती है कि किसकी बाइक कौन सी बड़ी है, तो सुपर बाइक्स करेक्ट, वाले हैं, फिर उसके बाद 650 सीसी वाले हैं। वो करेक्ट, हाउ एक्सपेंसिव इज योर बाइक, हाउ बिग इज योर बाइक, दैट डिसाइड्स कि हु इज अ बेटर राइडर। वी बिलीव कि आप चाहे कुछ भी चलाओ, 150 सीसी बाइक यू हैव, your skill as a rider has got nothing to do with your bike. And we करेक्ट, are looking for better riders, we are not looking for bigger bikes. So करेक्ट, that is our message, that we want to be part of the journey where people करेक्ट, can be better riders, and that is the bottom line. And of course, and therefore their safety, therefore whatever we can do to enable that, करेक्ट, that's. So I don't know, या message तो we are also learning as we are going. हम भी करेक्ट, 2.5 साल से हम ये कर रहे हैं, सुन रहे हैं अभी काफी कुछ। So when we करेक्ट, meet a lot of riders, we are talking to all of them and learning. तो करेक्ट, गलतियां भी करेंगे, I'm sure hopefully people will forgive us some mistakes. But I think the idea is to start learning. And करेक्ट, करेक्ट। यू हैव गिवन अ वेरी गुड पर्पस टू ऑल द पीपल, कि अक्सर ऐसा होता है कि जज ऐसे किया जाता है कि अगर मेरे पास 650 सीसी की बाइक है, उससे ज्यादा सीसी की बाइक है, तो मैं, मेरी राइडिंग स्किल्स अलग होगी या मुझे ज्यादा ध्यान देना है। बट यू आर गिविंग अ मैसेज कि आपके पास कोई भी बाइक हो, चाहे 150 सीसी हो, चाहे 220 सीसी हो, चाहे 350 सीसी हो, आपको, अगर आपके पास एक गियर अच्छा होगा, स्टैंडर्ड राइडिंग गियर होगा, तो आप एक्सट्रीम सिचुएशन में भी नहीं, आप नॉर्मल सिचुएशन में भी अच्छे से अपने आपको इक्विप कर पाओगे फॉर सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो
आपको नहीं पता किसी के साथ कब कभी भी रोड पे हो सकती है, विच एनीवन डजंट प्रे। करेक्ट। सो मेरा क्या, नहीं, एक एक चीज मैं एक और ऐड करना चाहूंगी, यू नो, श्योर, सिंस आई हैव गॉट इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि अब तक तो आई गो इन अ कार, तो मेरे को ध्यान भी नहीं, अगर गड्ढा होता है रास्ते में तो एट द मोस्ट यू विल फाइंड कि देयर इज अ बम्प, but now when I see it, it is like a death trap for riders. Riders, it is very, very insecure. And so we believe that they should wear gear all the time, they should have a good helmet all the time, because riding is a great, मतलब jitna freedom and the kind of enjoyment you can have with riding, I think it's a tremendous sort of a pursuit. But we should make it as safe as possible. And even our loved ones should feel comfortable कि चलो इन्होंने ये हेलमेट पहना है, इन्होंने ये गियर पहना है, तो you know they are okay. Otherwise अक्सर उनके घरों में लड़ाई होती है. Everybody says कि हमारे घर वाले बहुत against होते हैं कि I'm riding. So it should be something that enables. But sorry, I cut you, I think. आप कुछ No, कह no. You have brought a very valid point, and anything coming from you is definitely going to add value to the session as well. मैंने एक और चीज आपकी वेबसाइट पे देखी थी कि आपने लिखा था उसमें कि इफ यू आर नॉट फाइंडिंग योर आइडियल हेलमेट साइज का क्या फर्क पड़ता है पर्टिकुलरली आपके हेलमेट पे। कई बार ऐसा होता है कि लोग शायद साइज को एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि मेरे लिए कौन सी साइज है। आपने अपनी वेबसाइट पे ऐसा भी फैसिलिटी दी है कि एक राइडर एंटिसिपेट कर सकता है कि उसका उसके लिए आइडियल साइज कौन सी है। सो ये पर्टिकुलरली इसको ऐड करने का रीजन क्या था या सो अक्सर जो हेलमेट होते हैं ना, लोग पहनते हैं कि ये कंफर्टेबल हो, करेक्ट लेकिन अगर कंफर्टेबल, अगर मतलब जिसको आप कंफर्टेबल बोलते हो वो थोड़ा बहुत हिलेगा, विच मीन्स दैट एट करेक्ट द टाइम ऑफ इम्पैक्ट वो अगर हिल गया, देन यू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट योर हेड. द बेस्ट, ओके द वे द हेलमेट शुड बी वोर्न इज कि वो मतलब आपके चीक्स को ऐसे दबा के रखें. इट शुड बी ओके वेरी snug. एंड ओके उसमें जो कंफर्टेबल है, आपका कान नहीं दर्द होना चाहिए, उसमें प्रेशर नहीं आना चाहिए कि आपको हेडेक हो, बट इट शुड बी स्नग. आई थिंक करेक्ट ये जो हैबिट है, क्योंकि एंड वाई वी आर सेइंग दिस इज बिकॉज हमने जब हेलमेट डिजाइन और साइजेस देखने शुरू करे, तो हमने एनआईडी, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, उनके नेशनल पास हाँ, तो उनके पास डेटा है लाखों इंडियंस का, ऑन द बेसिस ऑफ विच फैशन इंडस्ट्री साइजिंग इज डन. तो करेक्ट उनमें हेड साइजेस भी थी. सो वी फाउंड दैट करेक्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन साइजेस आर 560 एंड 580 मिलीमीटर्स का सरकमफरेंस होता है. लेकिन जो जितने भी हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बोलते हैं कि उनके लार्जेस्ट सेलिंग हेलमेट्स जो होते हैं वो 600, 620, 640, तो वो बड़े साइज के होते हैं. एंड फ्रॉम दैट, एंड दे टोल्ड अस इनफैक्ट कि 90% तो वो 620 और 640 साइज के ही बिकते हैं. लेकिन अच्छा हमको डेटा से पता चला है कि 90% इंडियंस के हेड तो छोटे हैं. तो करेक्ट वी फील दैट मे बी सम पीपल आर फाइंडिंग कि ये you know किस तरह से साइजिंग करनी चाहिए, दैट मे बी वी नीड टू हैव एजुकेशन अबाउट. सो करेक्ट दैट्स द रीजन या फॉर फोकसिंग ऑन दैट. ये यस। मैंने एक और यूएसपी आपका लाइक आई केम अक्रॉस कि यू आर लाइट वेट हेलमेट्स एंड कुछ इफ आई करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कुछ 1200 ग्राम्स के आसपास ये बैठ रहा है। साढ़े सो एक बारह 1250। सो एक हेलमेट का लाइट वेट होने से क्या बेनिफिट होता है और कैसे एक राइडर ये एंटिसिपेट कर सके कि लाइट वेट है या नहीं, लाइक इज देयर एनी वे टू फिगर दैट आउट। वो आप पहनो, उसके ऊपर लिखा होता है. आप ओके सोचो, आप 1.5 किलो सर के ऊपर लगा के जा रहे हो. नॉर्मल हेलमेट्स आर 1500, 1550 ग्राम्स. तो आप 1.5 किलो सर पे ले जा रहे हो, उसमें 250 ग्राम्स लेस हो जाता है. It makes a huge difference to the head. So at 1250 grams, it is among the lightest in the world, and ओके uh, and yet it is strong. So that I think is really the strength of the helmet. This is our first model. We are, like I'm saying, we are constantly iterating, learning. ये हम बना के बैठ नहीं जाएंगे. I'm sure कि 6 months later we will come with even better. So like I said, you know, अभी भी गलतियां हम कर रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, सही बना रहे हैं, बट
It's a journey. It's a journey. Correct. Correct. And you being like you running, you having a helping hand in two companies, and you being studying from IIM Ahmedabad. So like जब आप ऐसा बोल सकते हैं कि गलतियां होती है तो फिर इट इज अ आई थिंक नेचर ऑफ एनी बिजनेस कि आप अपने कस्टमर से बात करोगे, आप उनकी नीड्स को समझोगे और आप अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व करोगे. सो मेरा डाउन द लाइन लास्ट क्वेश्चन ये होगा बिफोर वी वाइंड दिस अप इज कि आप चैलेंजेस पे वर्कआउट कर रहे हैं. जैसे आपने बोला कि कोई भी इनपुट आता है आप उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. आपको क्या लगता है कि एक आइडियल हेलमेट की डेफिनेशन आपके लिए क्या होगी जो आप अल्टीमेटली लोगों को देना चाहते हैं, कि जो आपके लिए एक डिफाइनिंग प्रोडक्ट हो कि हाँ आपको मतलब वो स्टेज कब लगता है आप एक्वायर करेंगे कि आप तब कह सकते हैं कि ये एक हेलमेट है जो हर आदमी पहन के जब निकलेगा तो वो अपनी सेफ्टी को इंश्योर कर रहा है, जो अभी भी कर रहा है आपके प्रोडक्ट से, बट वो थोड़ी और मॉडिफाइड हो जाएगी या फिर वो थोड़ी और सिक्योर हो जाएगी. सो लाइक डू यू थिंक कि कुछ ऐसी चीज है जिस पे वर्क करना जरूरी है, जो आपने राइडर्स से बात करके फील किया कि ये शायद चीजें जो हमें ऐड करनी चाहिए, या समथिंग लाइक दैट? आई थिंक बल्कीनेस जो है हेलमेट की, ओके. इसमें शेल तो हमारा बहुत ही पतला हुआ है, लेकिन उसके ओके. अंदर ईपीएस जो होता है, वी हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ईपीएस, लेकिन वो ईपीएस की थिकनेस ही इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये पूरा हेलमेट बहुत बल्की होता है और उसको उठा के ले जाना is difficult. So we are also trying to see are there newer materials जो नई नई टेक्नोलॉजी है जिससे we can take this ahead a little bit. तो एक तो ये है, दूसरा है a lot of riders हमको कहते हैं कि I feel invisible on the road, कि हमको कोई देखता नहीं है, you know, जो कार वाले होते हैं वो कार वाले को ही देखते हैं. When there is a two wheeler fellow in the middle तो वो तो रिगार्ड ही नहीं करते. So that is one reason. Second is then we realize कि जो हेलमेट का कलर होता है वो ब्लैक तो रात को तो दिखता ही नहीं है, और जो वाइट बेस कोट होता है वो ब्राइट सनशाइन में भी धुल जाता है, मतलब दिखता नहीं है. करेक्ट. So we have, and this is a big risk, you know, the same rider centricity, we have taken a big risk by doing only this special paint वो निपॉन ने डेवलप करा हमारे लिए, which is a yellow gold, कि ये विजिबल हो रोड पे. अब एवरीबडी इज टेलिंग अस के यू नो राइडर्स को तो ब्लैक और वाइट यही पसंद होते हैं, अब अगर आप ये नहीं करोगे तो ये शायद ये कलर किसी को पसंद नहीं आए. बट आई थिंक इफ वी हैव ट्रू टू अवर पर्पस why we are doing this, then we have to make sure that whatever color we have will add to visibility. So अगर हम कुछ करेंगे हेलमेट में, it will be to increase visibility and to reduce bulk. These are the two kind of things that we would look at. Maybe also smarter helmets, not smarter only by having a communication device, but maybe some data about riding that we can capture, maybe riding. So these are things we are thinking of. अभी तो शुरुआत है, so we'll see where we go. Correct. During the course of this session, what I have learned from you as a person is that an honesty towards your business and honesty towards serving the community. I think बिजनेस की डेफिनेशन कुछ सालों में बदल गई है कि फंडिंग ले लो, अपने आप को एक्सपैंड कर लो एंड यू आर अ फ्लरिश्ड बिजनेस. बट व्हेन आई टॉक्ड विथ यू, even though you have so immense knowledge, immense like exposure, you have entered into a category, you are creating your own category by doing the ramifications जो शायद लोगों को टाइम लगेगा समझने में, बट वो समझेंगे क्योंकि ये करने के लिए पीपल आर नॉट, दूसरी कंपनीज दे आर नॉट दैट मच रिलेंटलेस. बट सिंस यू आर अ कस्टमर सेंट्रिक focused brand, not in terms of only material but in terms of the design, the color. मैंने देखा आपकी वेबसाइट पे कि ब्लैक और व्हाइट में मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे डिफरेंट कलर्स मिले एंड दे वर रियली लुकिंग वेरी गुड. एंड यू हैव टोल्ड इट वेरी राइट कि अंधेरे में ब्लैक कलर किसी को नहीं दिखेगा, एंड मॉर्निंग में सनलाइट में आप व्हाइट कलर भी वो ऑलमोस्ट इट looks like invisible. So you want to streamline riding and you want to streamline a biker irrespective of his bike. Like ये मैसेज लोगों के लिए हो सकता है
to adopt your brand and to not only just buy the product, but buy an authentic and standard product, which is a community driven product. Yeah. So, anything which you would like to lastly address to the riders, बिकॉज हमने प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली, हमने डिजाइन के बारे में भी बात की, हमने लाइट वेट के बारे में भी बात की, हमने बात किया कि आप कौन से इनोवेशंस भी देख रहे हैं। राइडर्स के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज है कि पर्टिकुलरली विच यू वुड लाइक टू कम्युनिकेट आफ्टर serving in this domain? I think riding is a great. It's almost spiritual. You know, जो आप अकेले ही जा रहे हो, and in that space, you are alone by yourself with your surroundings. It Correct. is a kind of oneness, जो And you know, which is almost spiritual. So I think it's a great pursuit. Um, I'm just asking. I don't have any message. हमको कोई ऐसा ज्ञान correct, नहीं है. The only thing I would request riders is that please keep talking to us and please keep telling us whenever we make mistakes so that we can learn. I think one thing that Yash you said, which I agree with, is that you know, any startup has to fundraise. तो हम अभी VCs के साथ we are talking to a lot of VCs. तो I think शायद because of the Nykaa relationship and all that, काफी सारे VCs are interested. लेकिन correct, जो वीसी हम आके हमसे बोलता है कि यू नो आपका ग्रोथ प्लान क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हो, अगर वहाँ से शुरुआत होती है, वी नो दैट नो मैटर हाउ मच मनी दे गिव अस, they will keep pushing us to expand before we get our product right. And correct, we have chosen this year, we are telling everybody that हम इस साल बहुत कम हेलमेट बेचेंगे. Our plan is only that we will only sell some 30,000, 40,000 helmets. Now, the market size is such that people are talking about lakhs. So empty है, empty शायद 6-7 लाख helmet बेच रहे हैं या 4-5 लाख बेच रहे हैं. okay, We don't want to sell so many because we want to sell to people who understand. We want to understand them. We want to learn from them and we want to better. So I don't think हम उतने ज्ञानी हैं कि किसी को message दें, but I think we are definitely hungry to learn. So that's where it yeah. is. I should admit that I haven't seen a founder who is such who is bringing such clarity on the table कि कोई founder ऐसा नहीं बोलेगा कि हम चाहते हैं कि हम कम बेचें. Like even though they might tell कि हम user centric है, but this really shows कि your core foundation for this business was the upliftment of a rider. The least or in the most concise way I can communicate the messages. जब एक राइडर अपलिफ्ट होगा तो तीव्र जो आपने नाम रखा है कि वो इम्पैक्ट आप एक राइडर की लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू योर प्रोडक्ट्स एंड थ्रू योर कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच which I think everyone down the line and with the due course of time people will understand. Right. And I think that it was great interacting with you. मैं just last question आपसे ये जानना चाहूंगा कि what like since you are having a vast experience, how did you find this session? Like any scope of improvement for me in terms of asking the questions or anything? Because ये टॉपिक मेरे लिए काफी नया था, डोमेन नया था, so कुछ गलतियां मेरे से भी हुई होंगी. Any scope of improvement? I was very surprised, Yash. I think your questions were very insightful. And I have to say, I was nervous as well because I have not had a live session on Instagram. As you know, I'm much more active on LinkedIn. Yeah, Uh, so I had some trouble joining as well. But I thought your questions were very insightful. And, I think this is also eye opening and learning from me because I'm trying to understand this demographic of young men and correct, what the aspirations are, because I think a brand is not only about a product, it's about really understanding and saying, okay, how can we help these aspirations? So correct. I would love to keep interacting with you even Sure, otherwise beyond such kind of interviews. But sure, thank you for this. It was a sure. great question. Yeah. I think it was a pleasure for me, and I hope that like Vyogar has wrote that it was an interactive session, and yeah,
there are people who have been giving inputs about your brand, and I hope that this brand should reach the utmost height, which like this brand is going to change the landscape of riding gear industry, which Yes, I if have any, seen through the yes, if anybody yeah, has any question, can they sure. ask? I'm Yeah, they can happy to ask. take any They can questions. they can ask. I'm just checking if there was any question which we can answer. Just a moment. I think there is no questions as of Good. now, but yeah, Great. viewers can ask the question. Okay, great. No, that's fine. Yeah, yeah. So as of now, there are no questions. So I think this is Yeah, the we can wind up then. Thank yeah, you. we can wind up. So thank you very much, Alpana, and I personally looking forward to interacting with you apart from this session. So thank you very much, and I will personally write a shout out for this brand over LinkedIn, that to the best personal capacities that I have had the pleasure of interacting with you, and I hope that this brand should reach peaks in terms of community building and user reviews. So thank you very much, Alpana. Thank Yeah, you, Yash. Thank you so thank much. you. Thank you very much.